Hello friends. Friends, in the last lecture we have already studied the Weber's theory of religion and the contemporary relevance and the criticism also. But I have noticed that the video of criticism is not there. I have wrongly uploaded the video in which the criticism is not there. So I have prepared another video in which I will be discussing the criticism of Weber's theory of religion. So we will be starting with the criticism. uh, Here, if you can see, I have prepared many criticism of Weber's theory of religion and economy. So you can quote two or three or four criticism in your exam if it is asked to critically examine the Weber's theory of Protestant ethics and spirit of capitalism. So I have got around 11 criticisms. So you can write 3 to 4 criticism in your exam. Now, starting with the criticism, some scholars feel that he has concentrated very selectively on certain aspects of religious ethics and interpreted them very narrowly so that they may fit in with his theory. So, as you can see, that Weber has selected some ethics of Protestant religion, and then he has related with them with the ethos of capitalism, and hence proved that these ethics, because they are related with the ethos of capitalism or the spirit of capitalism, therefore they are conducive for the rise of capitalism in European society. So one of the criticisms is that he has selected very few traits of the religion and excluded the other traits which are non conducive for the generation of capitalism. तो कहने का मतलब है कि उसने कुछ traits he has picked up some traits which he found to be conducive for the generation of capitalism and excluded other. Therefore, he has concentrated very selectively on certain aspects of religious ethics and interpreted them narrowly सो दैट दे में फिट इन विद हिज थ्योरी. तो इस तरीके से उसने फिट करने की कोशिश की अपनी थ्योरी में केवल उन्हीं एथिक्स को जो उसे लगता है कि कैपिटलिज्म के लिए कंड्यूसिव है. बट ऐसे बहुत से सोशोलॉजिस्ट और जनरल क्रिटिसिज्म वेबर की थ्योरी का हुआ कि उसने फिट करने की कोशिश की अपनी थ्योरी में, क्योंकि बहुत से ऐसे एथिक्स हैं प्रोटेस्टेंट में भी जो कि कंड्यूसिव नहीं है. तो ज़रूरी नहीं है कि केवल उन्हीं एथिक्स कि केवल जो पॉजिटिव एथिक्स उसे लगता है उन एथिक्स की वजह से ही कैपिटलिज्म इंड्यूस हो जाएगा. हो सकता है कि नेगेटिव एथिक्स की वजह से कैपिटलिज्म इंड्यूस ना भी हो. तो इस तरीके से उसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया कि यस, ही हैज कंसंट्रेटेड वेरी सिलेक्टिवली ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ कैल्विनिज्म. Another criticism you can understand that according to Milton Singer ने criticize किया है कि Weber has overemphasized the fatalistic and passive aspect of Hinduism. He has presented a functional equivalent of the Protestant ethic in India in his study of the leading industrialist of the city of Madras in Shettyars. तो ये बोल रहे हैं कि जो शेट्टियार्स और इन मद्रास है वो भी हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, बट दे आर लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट इन देयर सिटी इन मद्रास. वो पूरे भारत में, इंडिया में रिनाउंड है दैट दे आर लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट. दे आर सेट अप देयर इंडस्ट्रीज एंड लीडिंग कैपिटलिस्ट. उनके पास बहुत पैसा है और वो बहुत बड़ी फैक्ट्रीज दे आर रनिंग. तो कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुइज्म जो है वो उसने डिमोटिवेट किया है कैपिटलिज्म को होने से देश में, क्योंकि बहुत से ऐसे हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले कम्युनिटीज़ हैं जो कि कैपिटलिस्ट हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने वर्क में. तो ये जो उसने हिंदुइज्म के बारे में बोला था वेबर ने, दैट इट इज़ नॉन कंड्यूसिव फॉर कैपिटलिज्म, इट इज़ एक्चुअली नॉट सो. तो ये मिल्टन सिंगर ने बोला. एक क्रिटिसिज्म R.H. टोने ने दिया, दैट इज़ वेरी वेल रेनोन्ड क्रिटिसिज्म. उन्होंने कहा कि बेसिकली ये रिवर्स होना चाहिए या रिवर्स होता है. ये ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स कैपिटलिज्म को जनरेट करते हैं. इट इज़ द रिवर्स एंड अपसाइड डाउन प्रोसेस. एक्चुअली it is the capitalism which has produced the Protestant ethics. So he said that it was industrial revolution in England which has led to rise of capitalism. So he said that it is not ethics which has led to capitalism, but it is the industrial revolution which has led to rise of capitalism. Weber put his criticism. Weber ने इस criticism को ख़त्म करने की कोशिश की by agreeing that Protestantism indeed developed out of capitalism, but then it became an independent cause
फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म, दैट प्रोटेस्टेंटिज्म हो सकता है इंडीड डेवलप आउट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट हो सकता है कि कैपिटलिज्म से डेवलप हुआ हो, बट एक बार डेवलप हो गया उसके बाद उसने कैपिटलिज्म को और पुश किया. It became an independent cause for development of modern capitalism. Similarly, criticism for not accounting hedonism was countered by stating that hedonism was only a character of advanced capitalism. और उसकी एक क्रिटिसिज्म और टोनी ने ये भी दी थी कि मॉडर्न यूरोपियन कंट्रीज में आप देखिए कि लोग बहुत हेडोनिज्म फॉलो करते हैं, यानी कि बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली स्पेंड करते हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते हैं. तो जबकि उन्होंने बोला था कि कैपिटलिज्म तब इंड्यूस होगा जब ऑस्टियर लाइफस्टाइल, रिगरस सेल्फ डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल आप फॉलो करेंगे. तो वो कहते हैं नहीं, हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल इज बीइंग फॉलोड बाय दी पीपल इन द यूरोपियन कंट्रीज. तो इसका वेबर ने क्रिटिसाइज किया. वेबर ने ये जो क्रिटिसिज्म था, वेबर ने इसको नेगेट किया बाय सेइंग दैट हेडोनिज्म वाज ओनली ए करेक्टर ऑफ एडवांस कैपिटलिज्म, दैट हेडोनिज्म एडवांस कैपिटलिज्म का करेक्टर है. मतलब जो कैपिटलिज्म, जो ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म था जो इंट्रोड्यूस हुआ था इन द यूरोपियन कंट्रीज, उसमें हेडोनिज्म नहीं था. ये केवल एडवांस कैपिटलिज्म में हेडोनिज्म आया है. तो ये बोल रहा है कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स ने ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म को इंड्यूस कर दिया है, इंड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई टू इंड्यूस द कैपिटलिज्म, ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म. और once this capitalism has been developed, उसके बाद मॉडर्न कैपिटलिज्म में हेडोनिज्म आया है. तो कहने का मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि हेडोनिज्म क्योंकि एडवांस कैपिटलिज्म का ट्रेट है, का करेक्टरिस्टिक है, तो ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म या फिर मॉडर्न कैपिटलिज्म, अच्छा ये समझ लीजिए, मॉडर्न कैपिटलिज्म एंड एडवांस कैपिटलिज्म बोथ आर डिफरेंट. तो कह रहे हैं मॉडर्न कैपिटलिज्म प्रोटेस्टेंटिज्म ने इंट्रोड्यूस किया या राइज करने में उसको उस ट्रेड्स को प्लेड अ मेजर इम्पोर्टेंट रोल. सो उसमें दिस वर्ल्डली एसेटिसिज्म रहा प्रोटेस्टेंट एथिक्स का, जैसे कैपिटलिज्म आया. लेकिन एक बार कैपिटलिज्म आ गया तो एडवांस कैपिटलिज्म को आगे बढ़ने के लिए, मतलब कैपिटलिज्म को मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो कि एडवांस स्टेज में जब तभी पहुंचेगा जब हेडोनिज्म होगा. तो इसका मतलब यह है कि वेबर ने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया, बोला कि वंस द मॉडर्न कैपिटलिज्म हैज बीन राइजन इन यूरोपियन सोसाइटी, so to maintain the capitalism some other factors also they are required. So what are those factors? So he said that hedonism was one of the trait of modern advanced capitalism. So hedonism उनमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक था, एक ऐसा ट्रेट था जो कि इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन दी मॉडर्न कैपिटलिज्म एंड टू एंटर इनटू द स्टेज ऑफ एडवांस कैपिटलिज्म. ओके, नाउ वेबर्स थ्योरी ऑफ रिलीजन में एक क्रिटिसिज्म ये है, इट वॉज इम्पेरिकली रॉन्ग अबाउट द सुपीरियर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट ओवर कैथोलिक्स, दैट कैथोलिक सोसाइटीज हैड स्टार्टेड टू. ये सिंपल है कि ये बोल रहे हैं कि ये रॉन्ग है कि भाई कैथोलिक्स के ऊपर प्रोटेस्टेंट ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल हैं, मतलब प्रोटेस्टेंट्स आर मोर इकोनॉमिकली पावरफुल देन कैथोलिक्स. दैट कैथोलिक सोसाइटीज हैड स्टार्टेड टू डेवलप मॉडर्न कैपिटलिज्म लॉन्ग बिफोर द रिफॉर्मेशन. ये रिफॉर्मेशन से लॉन्ग बिफोर कैथोलिक में कैपिटलिज्म आ गया था, एंड दैट इट वाज काउंटर रिफॉर्मेशन रेदर देन कैथोलिसिज्म इटसेल्फ दैट हैज लेड टू इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. तो ये बोला कि कैथोलिक में ऐसा कुछ नहीं था. सो Catholics they were starting to develop the modern capitalism even long before the Reformation. Reformation मतलब the Renaissance period की बात कर रहे हैं, ये 18th century वाला period, 17th to 18th century वाला period, जब Renaissance and there were many revolutions coming in Europe like scientific commercial revolutions. तो वो कह रहे हैं कि उससे पहले कैथोलिक सोसाइटीज में कैपिटलिज्म had started to develop.
but and that it was the counter reformation rather than Catholicism itself that had led to economic backwardness. तो ये बोलते हैं कि जो people Catholic religion they follow, those people who follow the Catholic religion, actually it was the counter reformation in those people or in those communities which has led to their economic backwardness rather than the Catholic religion itself which has led to their economic backwardness. ओके तो ये एक क्रिटिसिज्म दिया गया. एक क्रिटिसिज्म दिया गया seems to be the Weber's theory seems to be in that it requires consumption of commodities as well as saving for future investment. Protestant aid the later but the former may require hedonism. वही hedonism वाला इसमें दिया गया. Finally the present day capitalists are no longer guided by inner worldly necessities. The modern lifestyle is increasingly hedonistic. तो इसका काउंटर वेबर ने किया था कि मॉडर्न कैपिटलिज्म को प्रोटेस्टेंट ने इंड्यूस किया है, बट मॉडर्न कैपिटलिज्म को सस्टेन करने के लिए, यानी कि टू सस्टेन द मॉडर्न कैपिटलिज्म एज वेल एज द कैपिटलिज्म, द मॉडर्न कैपिटलिज्म ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू द एडवांस कैपिटलिज्म, हेडोनिज्म इज रिक्वायर्ड. तो इस तरीके से काउंटर किया था, बट एक वेरियस सोशियोलॉजिस्ट हैव क्रिटिसाइज्ड बाय सेइंग दैट इंस्टेड ऑफ asceticism, hedonism is required to introduce for the rise of capitalism. अच्छा, एक गोल्डनर, मिलर और वालस्टीन ने बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म दिया था. इन्होंने बोला था कि एक्चुअली इट इज colonialism which has led to emergence of capitalism rather than the religion. So इसने बोला West in the form of colonies got huge market in Asia, Africa and America and simultaneously got cheap labor and raw material उसको मिल गया. This led to accumulation of wealth by selling their finished product and hence capitalism. ये बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म है, आप इसको एग्जाम में कोट कर सकते हैं. पीटर सोमबार्ट ने बोला it is not true that capitalists were only Protestant believers. The capitalists came from all ranks and files of society like peasant, artisans, landlords. तो बोल रहे हैं कि कैपिटलिस्ट they doesn't belong to only Protestant but they belong to all files and ranks and files of society like peasant, artisans and landlords. तो सब कम्युनिटीज में से कैपिटलिस्ट हैव इमर्ज्ड. तो ऐसा नहीं है कि केवल जो प्रोटेस्टेंट्स को मानते हैं या जिनके पास टेक्नोलॉजी है या जो सब्सटेंस की बात करते हैं वेबर, केवल उसी में कैपिटलिज्म आया, बल्कि जो पीजेंट्स, आर्टिसंस हैं, दे आर ऑल्सो कैपिटलिस्ट. दे हैव अर्न्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन द यूरोपियन सोसाइटी. It refuted the classical economics Adam Smith conception that utilitarian need of man strived towards mechanization. वेबर्स की थ्योरी जो है वो इसको भी रिफ्यूट करती है जो एडम स्मिथ ने बोला था. एडम स्मिथ ने क्या बोला था कि हमारी जो मैकेनिकल नीड है, यानी कि हमें प्रोग्रेस की जो हमारी नीड है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी वजह से हमने मैकेनाइजेशन किया, क्योंकि हम चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना. लोग कंज्यूम करना चाहते हैं, इसलिए मैकेनाइजेशन हुआ, मशीन्स आई, फैक्ट्रीज बनी, मशीन्स आई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन सके. वेबर कंसिडर दैट सोल ग्राउंडिंग फॉर फ्लोरिशिंग ऑफ कैपिटलिज्म इज बर्थ ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म. वेबर ने कंसिडर किया कि सोल ग्राउंडिंग इज बर्थ ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म. वेबर ने जबकि ये बोला कि फ्लोरिशिंग ऑफ कैपिटलिज्म इज बर्थ ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म. प्रोटेस्टेंटिज्म के बर्थ के कारण ही कैपिटलिज्म राइज हुआ. अब इसमें अमिलाई फिनफाई, ए रशियन स्कॉलर, रिफ्लेक्टेड इन हिज स्टडी दैट इन इटालियन एंड डच ट्रेडर्स कैपिटलिज्म इज प्रेजेंट मच बिफोर द प्रोटेस्टेंटिज्म. तो ये बोल रहे हैं कि इटालियन और डच में तो इससे भी पहले आ गया था कैपिटलिज्म, इस पर मच बिफोर द प्रोटेस्टेंटिज्म. तो एक क्रिटिसिज्म था. एक क्रिटिसिज्म यही है कि ये बोला कि हिंदुइज्म में ऐसे ट्रेड्स हैं जिसकी वजह से कैपिटलिज्म नहीं हुआ देश में. बट ये बोल रहे हैं कि भाई गुजराती बनियास को देख लीजिए, सिंधीज, राजस्थानी, मारवाड़ी, दे आर ऑल कैपिटलिस्ट, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, दे हैव एक्सेल्ड वेरी मच इन देयर फील्ड. तो ऐसा नहीं है कि कोई हिंदुइज्म में कुछ ऐसा है, बल्कि ये अलग कुछ दे आर सम डिफरेंट कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ कैपिटलिज्म. उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जैसे बोल रहे थे कि बुद्धिज्म जो है ऐसा ट्रेड्स है बुद्धिज्म में जिसकी वजह से कैपिटलिज्म नहीं होगा. बट यू कैन सी दी जापानीज एंटरप्रेन्योरशिप. जापान ने कितनी तरक्की की है जहाँ पे बुद्धिज्म इज द मेजर रिलीजन. ओके, ये आप लिख सकते हैं. टीसी हॉल का क्रिटिसिज्म आप लिख सकते हैं. इट इज़ नॉट करेक्ट दैट ईथोस ऑफ कैल्विनिज्म आर कंड्यूसिव फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म. ये बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, स्कॉटलैंड, हाईलैंड्स एंड हिली रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका, जहाँ पे कैल्विनिज्म रिलीजन जो है लोग फॉलो करते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी पुअर. So it shows that a religious belief does not make a person wealthy, but
एक्चुअली द सिचुएशंस मेक हिम सो. लिप्सन एंड बेंडिक्स बोल रहे हैं दे फाउंड दैट जर्मनी वेंट फॉर कैपिटलिज्म बोरोइंग सब्सटेंस एंड वैल्यूज फ्रॉम अदर कंट्रीज, हेंस क्रॉस कल्चरल इंट्रैक्शंस वर ए प्रीरिक्विजिट फॉर कैपिटलिज्म. लिप्सन एंड बेंडिक्स बोलते हैं कि भाई जर्मनी में कैपिटलिज्म हुआ, इन्होंने बोरो किया सब्सटेंस एंड स्पिरिट वैल्यूज फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो क्रॉस कल्चरल इंट्रैक्शन की वजह से कैपिटलिज्म आता है. लॉरेंस स्टोन कहते हैं कि इट वाज नॉट प्रोटेस्टेंट एथिक बट ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी मतलब जो हाई लेवल के लोग हैं, हाई क्लास लोग हैं, टाइप नोबल्स हो गए, यू नो, दी नोबल्स, दी मिलिट्री मैन ऑफ हाई रैंक्स, nobles of high ranks, the king and the people who are working in his in his palace and his court. So British aristocracy which had accounted for the rise of capitalism, not the Protestant ethics. एक इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं बीना दास एंड JPS एब्रॉय, इन्होंने बोला स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वाज नॉट यूनिक टू प्रोटेस्टेंट. स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म केवल प्रोटेस्टेंट्स में ही नहीं था, ये सिक्स में भी था. सिक्स इन कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड जिन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की. ऑल्सो इन इंडिया जैन्स, अभी ये भी बोलते हैं कि जैन्स में भी यही बिलीफ है जो प्रोटेस्टेंट में है. दे कंसिडर वर्क एज दे आर कॉलिंग, दे फॉलो स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल, सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल. तो ये सब जैन में है, बट दे आर नॉट कैपिटलिस्ट, they have not earned huge amount of money. So it is wrong that it is the Protestant ethics, or it is the those ethics which Weber has talked about has led to rise of capitalism. Okay. और ये लास्ट क्रिटिसिज्म है, ये भी लिख सकते हैं आप. वर्नर सोंगबार्ट जो है जर्मन इकोनॉमिस्ट, इन्होंने बोला कि प्रोटेस्टेंट एथिक का जो फंक्शनल इक्विवेलेंट है वो जुडाइज्म में भी है. जुडाइज्म में देखा है, बट ये तो बोला ही था वेबर ने कि जुडाइज्म में भी सारे एथिक्स हैं, बट जुडाइज्म में सब्सटेंस नहीं है. तो ये बेसिकली क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं ठीक नहीं है. बट वर्नर सोमबार्ट, क्योंकि वेबर ने सब्सटेंस को कम एम्फेसाइज किया था, स्पिरिट को ज़्यादा किया था, इसलिए वर्नर सोमबार्ट ने क्रिटिसिज्म दिया था. उसके अलावा रॉबर्ट बेल्ला ने जापान के बुद्धिज्म, टोकुगावा कम्युनिटी जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, टोकुगावा बुद्धिज्म एक टाइप ऑफ बुद्धिज्म सेक्ट मान लीजिए टोकुगावा, उसमें भी देखा कि द पीपल हु आर फॉलोइंग द टोकुगावा बुद्धिज्म आर कैपिटलिस्ट. तो जो बुद्धिज्म के बारे में वेबर ने बोला था दैट बुद्धिज्म दे फॉलो द एपिग्राहा, दैट इज नॉन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मटेरियल पोजेशंस, एंड दिस वर्ल्ड इज इल्यूजरी, so you need to do salvation and meditation and pray and leave this world and resign from this world and from the desires of this world to to worship for the almighty. Not वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई गॉड का कोई शेप होता है, बस एक वो बोलते हैं पीस में रहना है, हारमनी में रहना है और वर्च्यूज़ को फॉलो करना है. तो इस टाइप का जो बुद्धिज्म का जो इन्होंने बोला वेबर ने कि इसमें ऐसा कोई भी एथिक नहीं है जो कि कैपिटलिज्म को इंड्यूस करे. बट टोकुगावा बुद्धिज्म में देखा कि कैपिटलिस्ट, दोज पीपल आर कैपिटलिस्ट. सो दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म विच रॉबर्ट बेल्ला हैज गिवन. सो इन दिस वे मैनी क्रिटिसिज्म आई हैव रिटन डाउन इन माय स्लाइड्स, so you can write 3 or 4 criticism, and with this I end the criticism of Weber's theory. And the next lecture we will be starting with the Marx theory of religion and the criticism and the relevance, contemporary relevance of Marx theory. Okay, thank you very much.